of democracy. Marching together in harmony. India-France Dosti and diplomacy. Tejas and Rafale roar above Kartavya Path. A special India Today Republic Day preview. That's our top focus on India First. Hello and welcome to an India Today special broadcast on the 75th Republic Day. Preparations that are currently underway here at the Kartavya Path. The world will see India's military might, our strategic power and also the cultural diversity of Bharat. On display on Kartavya Path will not only be Nari Shakti but also India, Bharat, the mother of democracy. Over the course of the next half hour, we get you details of Bharat Shakti on the 75th Republic Day. The President of France, Emmanuel Macron, is the chief guest at the 75th Republic Day, and on Kartavya Path, the strengthened ties between India and France will be on display. There's a French marching contingent, a French military marching contingent. But apart from that, it's not just the French army. The French Air Force Rafales will fly past the Kartavya Path along with the mid-air refuelers. That will be a display of India and France. Two countries that have carried out a number of military exercises together, not just in India, not just in France, but also in the Indo-Pacific. And that shows the relationship that's strengthening with each passing year. Prime Minister Narendra Modi, you'd recall, was the chief guest at the Bastille Day, and an Indian Army marching contingent, an Indian Armed Forces marching contingent was also a part of the Bastille Day celebrations. कर्तव्य पथ पर इस बार गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान एक अलग रंग देखने को मिलेगा जब फ्रांस के राष्ट्रपति की मुख्य अतिथि हैं। उनके साथ फ्रांस के 100 से ज्यादा सैन्य कर्मियों का दल भी गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा होगा। हमारे साथ सैनिक फ्रांस के लिए परेड का हिस्सा है। कितने सैन्य टुकड़ी आप फ्रांस से यहाँ पर आई है और क्या अब तक आपका एक्सपीरियंस रहा? We are a group of 130 people, including the bandmasters. They are from the French colony in Italy. We have our own band here. It's really a great opportunity for being here. Thank you so much for receiving us, for the hospitality, for the authorities, the Indian authorities and our French authorities for selecting us, the French colony, to have to be present over here in the most important day, the Republic Day. Thank you so much. Me, my troops, and my friends, we feel so happy being here in the part of the state, being a part of the state. तक किस तरह की तैयारी की आपने, किस तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो रहा है। तैयारी भी इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस सब मिलके तैयारी कर रहे हैं। हमारा सब अच्छा ही रहा है। सबके साथ वो सेकेंड कल्चर, मिलिट्री कल्चर को भी देखने का चांस मिल रहा है। We are all of the French religion, and we say in the French religion we have a code of honor, and it says the mission is sacred. Okay, and here it's not only a mission for us; it's a pleasure and it's a great honor. So we're very excited about the festival. ये फ्रांस की वो सैन्य टुकड़ी सैनिक हैं जो इस बार गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान पर भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन अश्विन हिरन के साथ मंजित नेगी, दिल्ली। Bharat and the world saw the Pran Pratishtha of Maryada Purushottam Shri Ram at the Ayodhya Ram Janmabhoomi temple. And on the 75th Republic Day,
the world will also see India's cultural diversity, the tableau of Uttar Pradesh, which will have Vikasit Uttar Pradesh, a display not just of the Sri Ram temple at Ayodhya, but the impact it will have on the development in Ayodhya and across Uttar Pradesh as a model civilizational cultural city. कर्तव्य पथ पे जो झांकी इस बार विशेष है वो है उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसमें विकास करता हुआ उत्तर प्रदेश इस बार हमें देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो नई मेट्रो चली है, नई जो विकास परियोजना आई है, चाहे वो फिर राम मंदिर की झलक क्यों ना हो, ये सब हमें इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में देखने मिलेगा। सर, कैसी है इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी की तैयारी, क्या झलक हमें देखने को मिल रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विकसित भारत समृद्ध विरासत, विकसित भारत समृद्ध विरासत हमारी थीम है। उसमें हम लोगों ने ये दिखाया है कि उत्तर प्रदेश हमारा जहाँ एक और सांस्कृतिक रूप से विरासत के रूप में हमारा मतलब नंबर 1 है, दूसरी ओर डेवलपमेंट में भी हम उत्तर प्रदेश में सबसे आगे हैं। आप देख रहे हैं कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हम लोगों ने अग्रभाग में भगवान राम के बाल स्वरूप को प्रस्तुत किया है। इसके अलावा हमारा जिसका जो पैनल आप देख रहे होंगे, ये राम मंदिर का ही आर्किटेक्चर हम लोगों ने लिया है। इसके अलावा जो हमारा जो मेन ट्रेलर पार्ट है, जनवरी 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में होना है, उसी के रूप में हम लोगों ने ये महाकुंभ का लोगो और दो साधु हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है। इसके अलावा डेवलपमेंट में जो कि हम नंबर 1 हिंदुस्तान में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रैपिड रेल जो कि हिंदुस्तान में खाली उत्तर प्रदेश में चल रही है, वो भी गाजियाबाद से दुहाई के बीच में और मेरठ तक काम चल रहा है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि ये ब्रह्मोस मिसाइल जो कि भारतवर्ष में केवल इसका प्लांट लखनऊ में सरोजी नगर में बन रहा है, सिंबॉलिक रूप में हमने उसको प्रस्तुत किया है। इसके अलावा जो हम लोगों ने जो साइड पैनल है, इसमें अयोध्या का दीपोत्सव है, हमारा जो जेवर का एयरपोर्ट है, इसके अलावा जो है नोएडा का मोबाइल हब है, इसके अलावा जो हमारा जो LED स्क्रीन है, इसके माध्यम से हमारे सर्वाधिक 6 शहरों में मेट्रो चल रही है। 7 एक्सप्रेसवेज हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो भी केवल उत्तर प्रदेश में है। कुल मिलाकर के हमारा जो है ये समृद्ध विरासत और डेवलपमेंट दोनों को हमने एक साथ दिखाने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की झलक हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, फिर वो चाहे राम मंदिर हो, चाहे वो रैपिड मेट्रो हो, या फिर ब्रह्मोस मिसाइल जिसका परीक्षण किया गया, उसकी झलक इस बार कर्तव्य पथ पे 26 जनवरी के दिन उत्तर प्रदेश की झांकी में देखने को मिलेगी। The world has acknowledged India's growing diplomatic clout. Several world leaders have talked about it. In fact, Elon Musk has also commented about it. But on Republic Day, the Platinum Republic Day of India will see a tableau of the Ministry of External Affairs that talks about India's diplomatic might that's constantly not just increasing, but positively impacting the world, especially when it comes to being the voice of the global south. This was amply on display at the G20 summit, a very crucial part of the tableau of the Ministry of External Affairs. India is the voice of the developing world. And not just a voice, but India's actions are seen by the world, amply proven during the COVID crisis. When the developed world was hiding their vaccines, India, as part of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family, was sharing those vaccines with the global south. On the 75th Republic Day, women empowerment and the role of women in defending our country, whether it's being a part of the armed forces as fighter pilots, helicopter pilots in the armed forces, but also in the central armed police forces, and in every way of life, working shoulder to shoulder with the men, in fact at times being a couple of steps ahead in taking India forward. That power, women power, is on display on Kartavya Path this 75th Republic Day. Not symbolic, but a very significant statement of intent
and action on ground. इस बार कर्तव्य पथ पे नारी शक्ति अपना शौर्य दिखाएगी और इंडियन आर्मी की तरफ से जो फीमेल ऑफिसर्स कर्तव्य पथ पे राष्ट्रपति को सलामी देंगी वो हमारे साथ है। लेफ्टिनेंट प्रियंका हमारे साथ है। इस बार आर्टिलरी की तरफ से भी जो है महिला ऑफिसर्स आरडी परेड में आ रही हैं। जी बिल्कुल, हमारा फर्स्ट बैच है वुमेन ऑफिसर्स फ्रॉम आर्टिलरी जो कि कर्तव्य पथ पे पार्ट ले रही हैं। मैं पिनाका सिस्टम को लीड कर रही हूँ। जो जर्नी रही है एक एनसीसी कैडेट से एक इंडियन आर्मी ऑफिसर तक की, ये काफ़ी सरियल फीलिंग है। एज ए एनसीसी कैडेट आप ऑफिसर्स को देखते हो, आप इक्विपमेंट को देखते हो और अब ये पल है कि मैं उस इक्विपमेंट को लीड कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझती हूँ और ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पिनाका मिसाइल जो है एक बहुत पूर्ण हथियार है भारत के लिए, इंडियन आर्मी के लिए और उसकी जिम्मेदारी अब महिलाओं के कंधे पे है। जी बिल्कुल, जहाँ की पिनाका सिस्टम की बात है ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है और मेरा मानना ये है कि अगर हम प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है तो ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आप मेल ऑफिसर हो या फीमेल ऑफिसर हो। जैसे कि हमारे मेल काउंटर पार्ट्स उसको हैंडल करते हैं, हम भी वैसे ही हैंडल करेंगे। बिल्कुल, एक समय में सपना होता था लड़कियों का इंडियन आर्मी में जाना, फिर धीरे धीरे वो सफल होता गया। ऐसे मुकाम भी महिलाओं ने हासिल किए हैं इंडियन आर्मी में जो काफ़ी सराहनीय है। इस बार आप एक फीमेल ऑफिसर के तौर पे इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही हैं कर्तव्य पथ पे, कैसा लग रहा है? कितनी मुश्किल होती है ये पूरी परेड की जो ट्रेनिंग होती है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस बार कर्तव्य पथ पे हूँ और मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। एंड मुश्किलात, हाँ मतलब बहुत टाइम से वो इक्विपमेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। हमारे ट्रूप्स बहुत मेहनत करते हैं उस पर। पिछले 2 महीने से हम यहाँ पे हैं, वो इक्विपमेंट को तैयार कर रहे हैं कि वो इक्विपमेंट आरडी परेड के लिए फाइनली रेडी हो। और ठंड का सामना बहुत करना पड़ता है और भी काफ़ी चैलेंजेस हैं, बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट सब बहुत अपना पुट इन मारते हैं एंड दे ट्राई टू गिव द बेस्ट। इस बार की रिपब्लिक परेड महिला सशक्तिकरण के लिए, जैसा आपने कहा, बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है, पर उससे ज़्यादा यह दुनिया को दिखाता है कि कितना प्रोग्रेसिव इंडिया एज ए नेशन है, जो कि हमेशा सोचा गया पिछड़ा हुआ है या पीछे की सोच है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में काबिलियत है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं इस देश में। Well, it is immense pride for me to be here. It's a great privilege to represent my regiment and my community. फीमेल ऑफिसर्स के लिए कितनी गर्व की बात है कि इस बार वो जो है वो लीड कर रही हैं, वो रिप्रेजेंट कर रही हैं कर्तव्य पथ में। बहुत बड़ी बात है। एंड यहाँ जितने भी कंटिंजेंट कमांडर्स हैं सब ने बहुत मेहनत करी है अपनी अपनी फील्ड में और इसलिए वो यहाँ आए हैं, तो उनकी मेहनत को तो सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी था। इस बार गणतंत्र दिवस में पहली बार कर्तव्य पथ पर भारतीय त्रिसेना यानी नौसेना, वायुसेना, थल सेना की महिला टुकड़ी भाग लेगी, मार्च करेगी और इस टुकड़ी को जो लीड कर रही हैं कैप्टन संध्या हमारे साथ है। इन्हीं के नेतृत्व में ये सेना की जो महिला टुकड़ी है वो आगे बढ़ेगी। कैसा आपको लग रहा है, कितनी आपकी तैयारी है गणतंत्र दिवस? तैयारी हमारी पूरी है और ये जो फीलिंग है कि तीनों सेना की वुमेन सोल्जर्स एक साथ आई हैं एज वन कंटिजेंट और हमने जिस हिसाब से ट्रेनिंग की है तो और जिस लेवल तक अभी हम पहुंचे हैं एज अ कंटिजेंट, तो मैं बोलना चाहूँगी कि हम गणतंत्र दिवस के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम एक बहुत ही अच्छा मार्चिंग करेंगे कर्तव्य पथ पे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों सेना की जो महिला टुकड़ी है वो इस बार मार्च करेगी, राष्ट्रपति को सलामी देगी। ऐतिहासिक फैसला भी इसे माना जा रहा है। बिल्कुल, ये पहली बार ऐसा है कि गणतंत्र दिवस, किसी भी गणतंत्र दिवस में तीनों सेना की वुमेन सोल्जर्स, ऑल वुमेन कंटिजेंट है ये, तो तीनों सेना की वुमेन सोल्जर्स एक साथ आके प्रेसिडेंट को हम सलामी देंगे। और स्टार्टिंग में ये था कि तीनों सेना में जो ड्रिल्स हैं और प्रोसीजर्स हैं उनमें थोड़ा अंतर होता है, जैसे कि तीनों सेना का सल्यूट अलग तरीके से है और बाकी ड्रिल्स में भी थोड़ा फर्क है, तो उन चीज़ों को एक जैसा करना, यूनिफॉर्मिटी लेके आना, उसके लिए जो हमारे ट्रूप्स ने जो मेहनत की है और हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स जो कि काफ़ी काबिल हैं, उन्होंने उनकी गाइडेंस के अंडर तीनों सेना एक साथ आई और एक लेवल, एक जैसी अभी मार्चिंग कर रहे हैं। तो
नज़ारा देखने लायक होगा बिल्कुल। जैसे कि आपने हर बार देखा है कि हर बार नेवी के कंटिजेंट होता है, एयरफोर्स का कंटिजेंट होता है और इंडियन आर्मी के डिफरेंट कंटिजेंट होते हैं, बट इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि तीनों फोर्सेस के वुमेन अग्निवीर और उनके साथ तीनों फोर्सेस से ऑफिसर्स एक साथ मार्च कर रहे हैं और वो हमारे सुप्रीम कमांडर को सैल्यूट कर रहे हैं। और ये पहला मौका है जब मैं कर्तव्य पथ पर फाइनली मार्च करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और इतिहास बनाने के लिए हम तीनों सेनाएं इस बार बहुत ज्यादा तैयार हैं, क्योंकि ये पहली बार होगा इतिहास में जब तीनों सेनाओं से सिर्फ नारी शक्ति का प्रदर्शन होगा और सब एक साथ 144 अग्निवीर वीरांगनाएं और 4 ऑफिसर्स कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगे। बहुत खुशी एंड बहुत गर्व महसूस हो रहा है बिकॉज आई एम लीडिंग द आर्मी कॉम्पोनेंट ऑफ दिस ट्राई सर्विसेज कंटीजेंट। तो मैं बहुत मोटिवेटेड थी एज आई वाज अ एनसीसी कैडेट। तो मैंने एनसीसी में भी ये देखा है कि हम रिपब्लिक डे पे आए थे, तो उस टाइम एज अ कैडेट आए थे, तो उस टाइम एक सपना था कि कभी ऑफिसर बनेंगे और कभी यहाँ पे मार्च करेंगे ऑन द कर्तव्य पथ करके। तो अभी वो साकार हो रहा है। अभी आई एम एन ऑफिसर एंड आई एम ऑल्सो मार्चिंग and this is the first time that a tri-services contingent is coming and it's a historic moment for us. तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है इस बात की that I'm a part of this contingent and we are just waiting for that 14 seconds when we are giving the salute to the Supreme Commander as a tri-services contingent. तो बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। ट्राई सर्विसेज का त्रिसेना का महिला दस्ता जब कर्तव्य पथ पे उतरेगा तो सबकी निगाहें इस महिला दस्ते पे होगी। The all-terrain vehicles, they play an extremely critical role in the battlefield and the ever-changing battlefield, be it high altitude, snow, desert, or be it a forested area, be it the plateau. Now these armored fighting vehicles, all-terrain quick reaction vehicles and the all-terrain vehicles, a very critical force multiplier at the tactical level in a battlefield. Some also used as ambulances for quick movement of injured troops to the hospital. They make the difference between life and death in any terrain. And these ATVs will be on display on the 75th Republic Day, a crucial force multiplier that the Indian Armed Forces are acquiring and also manufacturing in India. India is not only the mother of democracy, but another very important aspect is we are the oldest flourishing civilization of the world and a very strong military power. And when you talk about your legacy, how were soldiers summoned or citizens summoned in the olden times? The dhol, the nagara and the musical instruments that were used for avahan, for calling people, for congregation to come together. And on the 75th Republic Day, you see this fifth Republic Day, the world will see India's rich cultural heritage, India being the mother of democracy, and India emerging as a strong military and strategic power. That is all I have for you on this special broadcast from the Kartavya Path. Many thanks for watching. News and updates continue on India Today. Stay with us. From the biggest conflict zones,
We are at the Hostel Air Base and this is to the biggest international moments. A reporter with India's flag on his sleeve and an unrelenting eye on terror, defense and national security. On the road, up the heights, in the trenches, he brings you stories that must unite us. Because when it's national interest, it's India first. Monday to Friday 10 p.m. only on India Today TV. An unparalleled sea of humanity. Saffron flags wave proudly. The air filled with the sounds of hymns and chants. The faithful, adorned in saffron stoles, have thronged the holy city. A mesmerizing spectacle in Ayodhya, a day after the consecration of Ramlala in the Grand Ram Temple. महिलाएं कैसी नाचते हुए दिखाई दे रही हैं, जय श्री राम के नारे हैं और ये तस्वीरें आज की आप देख रहे हैं, यानी कि एक दिन के बाद प्राण प्रतिष्ठा होने के एक दिन के बाद 24 घंटे के बाद आप देखिए जय श्री राम के नारे के साथ किस तरह की भावना है यहाँ पर। ये अवधपुरी के लोग हैं जो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रकटीकरण इस रूप में कर रहे हैं। Faces beaming with faith and enthusiasm. Spiritual fervor at its peak. पिछले 5 दिन से हम यहाँ पर हैं, ऐसा लग रहा है कि सच में सतयुग में पहुँच गए। अमेरिका से हम स्पेशल आए हैं और भगवान के हमारा बहुत बढ़िया हवन भी हुआ और बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। अद्भुत अलौकिक, शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है। तो आज दर्शन करके ही जाएंगे, बिगर दर्शन के नहीं जाएंगे। भीड़ कितनी है? अरे भीड़ की तो कोई गिनती है नहीं। Security is paramount. Checks at the temple gates rigorous. The entire 13-kilometer Rampath witnessing a heavy turnout. Police have strategically placed barricades and ropes along the key routes. Amidst the security measures, what stands out is the unshakable faith of the devotees, the focal point of this spiritual journey. Devotees